तेषु भद्रेषु नित्यं भागवत सेवया भगवती उत्तम श्लोके भक्तिर्भवति नैष्ठिकी. Reading from Srimad Bhagavatam 1.8.22. नमः पंकजनाभाय नमः पंकजमालिने नमः पंकजनेत्राय नमस्ते पंकजांघ्रये. Translation and purport by His Divine Grace A.C. Bhaktivedanta Swami Srila Prabhupada ki Jai. My respectful obeisances are unto you, O Lord, whose abdomen is marked with a depression like a lotus flower, who are always decorated with garlands of lotus flowers, whose glance is as cool as the lotus, and whose feet are engraved with lotuses. Purport. Here are some of the specific symbolical marks on the spiritual body of the personality of Godhead, which distinguish his body from the bodies of all others. They are all special features of the body of the Lord. The Lord may appear as one of us, but he is always distinct by his specific bodily features. Srimati Kunti claims herself unfit to see the Lord because of her being a woman. This is claimed because women, Shudras, the labor class, and the Dvijbandhus, or the wretched descendants of the higher three classes, are unfit by intelligence to understand transcendental subject matter concerning the spiritual name, fame, attributes, forms, etc. of the Supreme Personal, Supreme Absolute Truth. Such persons, although they are unfit to enter into the spiritual affairs of the Lord, can see him as Archa Vigraha, who descends to the material world just to distribute favors to the fallen souls, including the above mentioned women, Shudras, and Vijbandhus. Because such fallen souls cannot see anything beyond matter, the Lord condescends to enter into each and every one of the innumerable universes as the Garbhodakshai Vishnu, who grows a lotus stem from the lotus like depression in the center of his transcendental abdomen, and thus Brahma, the first living being in the universe, is born. Therefore, the Lord is known as the Pankajanabhi. The Pankajanabhi Lord accepts the Arsha Vigraha, his transcendental form, in different elements, namely a form within the mind, a form made of wood, a form made of earth, a form made of metal, a form made of jewel, a form made of paint, a form drawn on sand, etc. All such forms of the Lord are always decorated with garlands of lotus flowers, and there should be a soothing atmosphere in the temple of worship to attract the burning attention of the non devotees always engaged in material wranglings. The meditators worship a form within the mind. Therefore, the Lord is merciful even to women, Shudras, and Dvijbandhus, provided they agree to visit the temple of worship in different forms made for them. Such temple visitors are not idolaters, as alleged by some men with a poor fund of knowledge. All the great acharyas established such temples of worship in all places just to favor the less intelligent, and one should not pose himself as transcending the stage of temple worship while one is actually in the category of the Shudras and the women or less. One should begin to see the Lord from his lotus feet, gradually rising to thighs, waist, chest, and face. One should not try to look at the face of the Lord without being accustomed to seeing the lotus feet of the Lord. Srimati Kunti, because of her being the aunt of the Lord, did not begin to see the Lord from the lotus feet because the Lord might feel ashamed. And thus Kunti Devi, just to save a painful situation for the Lord, begin to see the Lord just above his lotus feet, that is from the waist of the Lord, gradually rising to the face and then down to the lotus feet. In the round, everything there is in order. So we see mainly भगवान के जो शरीर के सभी अंग हैं उनको लोटस से हमेशा कंपेयर किया जाता है बिकॉज लोटस इज कंसिडर्ड वेरी ब्यूटीफुल ऑब्जेक्ट इन दिस मटेरियल वर्ल्ड and the beauty of lotus, that's Krishna's beauty, is much more higher than the beauty of anything of this material world, because Krishna's body is all spiritual. You cannot compare the spiritual body of Krishna with anything material of this world. But the most beautiful thing of this material world is considered closest with which the limited vision we can actually compare the body of the Lord, beauty of the Lord. तो इसीलिए भगवान के जितने भी
शारीरिक अंग है उनको, जैसे आप पंकज नेत्र, पंकज नेत्र है भगवान के, पंकज नाभि है भगवान, पंकज पंकज आंग्री है, आंग्री मतलब जिनके अंग अंग पंकज की तरह हैं, एंड चरण कमल कहते हैं। सो ऑल दीज आर, आप देखेंगे सभी को लोटस से कंपेयर किया जाता है। एंड प्रभुपाद यहाँ अगेन एंड अगेन कह रहे हैं कि विमेन शूद्रा एंड विजबंधु, जो कि निम्न श्रेणी के माने जाते हैं। अब आप पूछेंगे कि ये निम्न श्रेणी का इस तरीके का डिवीजन क्यों कर रहे हैं। तो हमारे शास्त्रों में कहा गया है कि जो ये सभी वो लोग हैं जो आध्यात्मिक ज्ञान को या आध्यात्मिक ज्ञान को, बेसिकली आध्यात्मिक ज्ञान को सहज स्वीकार नहीं कर पाते हैं। उनको वो लोग इमोशनल होते हैं, या फिर वो उनके अंदर इतना स्पिरिचुअल इंटेलिजेंस नहीं होता है। हो सकता है मटेरियल इंटेलिजेंस हो, लेकिन स्पिरिचुअल इंटेलिजेंस नहीं होता है। कि जैसे कि कल हम लोग डिस्कशन कर रहे थे कि आप किसी भी धार्मिक अनुष्ठान को करेंगे तो उसमें बहुत स्त्रियों की संख्या आएगी, लेकिन उनमें से बहुत से स्त्रियां ऐसी होंगी जो कि भगवान को भावुक रूप से स्वीकार करती हैं, भक्ति को बहुत भावुक रूप से स्वीकार करती हैं। और मैंने देखा है जनरली, कि अपने घर में भी देखा है, मदर को देखा है और स्त्रियों को देखा है, कि वे जब भी भगवान उनकी इच्छा के अनुसार कुछ कार्य नहीं होता तो भगवान को दोष भी देने लगते हैं कि भगवान ने हमारे साथ ऐसा किया, ये भगवान से मैं नाराज हूँ। और उनको उठा के, कुछ लोग जैसे कभी कभी कोई घर में किसी की मृत्यु हो जाए और उन्होंने बहुत प्रार्थना की थी उनसे बचाने के लिए, फिर भी मृत्यु हो गई तो भगवान को ही उठा के फेंक देते हैं घर से। तो ये है इमोशनल व्यवहार, ये रेशनल नहीं है। तो इसीलिए ये विमिन शूद्र एंड द्विज बंधु, ये सभी इसी कैटेगरी में आते हैं, जो भगवान से इमोशनली, हो सकता है इमोशनली कनेक्ट करना चाहते हैं, बट भगवान को एक सिद्धांत के रूप में नहीं समझना चाहते, भगवान के सिद्धांत तो दर्शन को नहीं समझना चाहते हैं। एंड कलौ शूद्र संभव, भागवतम कहती है कलयुग में सभी शूद्र ही पैदा होते हैं। तो सभी लोगों की समझ जो है वो कम ही है कलयुग में अल्टीमेटली। इसीलिए हम लोगों के लिए मंदिर बनाए हैं जहां पर भगवान अर्च विग्रह के रूप में अवतार लेते हैं, और फिर वो हम सभी लोगों को दर्शन देते। तो कल हम सभी तो शूद्र ही पैदा हुए हैं एज पर श्रीमद् भागवतम। तो हम सभी के लिए भगवान अर्च विग्रह, बहुत मर्सीफुल है, भगवान के अर्च विग्रह के रूप में आते हैं। और यहाँ पर एक और श्लोक की चर्चा हुई है कि भगवान को किस किस रूप में बनाया जाता है। यानी भगवान को माइंड में एक फॉर्म बना सकते हैं, भगवान की लकड़ी से उनकी फॉर्म बना सकते हैं, मिट्टी से उनकी फॉर्म बना सकते हैं, धातु से फॉर्म बना सकते हैं, रत्नों से उनकी फॉर्म बना सकते हैं, और पेंट से उनकी फॉर्म बना सकते हैं, और बालू के ऊपर भी उनकी फॉर्म बना सकते हैं। ये 7 प्रकार की जो फॉर्म्स है भगवान की बताई गई हैं, 1 2 3 4 5 6 और 7, ये 7 प्रकार की जो फॉर्म है, ये सभी भगवान की ऑथराइज्ड फॉर्म है। तो कोई अगर जैसे एक डिवोटी का संस्मरण आता है कि वो भगवान को कुछ ऑफर करना चाहते थे, लेकिन उनके पास कुछ धन नहीं था, तो उन्होंने माइंड में ही ऑफर करना शुरू किया, और माइंड में ही उन्होंने खीर बनाना शुरू किया। और खीर बनाई, खीर बनाई, खीर बनी, मन मन में ही दूध लिया, उन्होंने पतीले पे चढ़ाया, और पतीले पे नीचे आग लगाई, आग के ऊपर पतीला रखा, उसके बाद उन्होंने उसमें खी चावल डाले, उबाला, फिर लास्ट में फिर चीनी डाली, फिर उन्होंने एक कटोरी में डाल के भगवान को अर्पित करने लगे। सब माइंड में हो रहा है। और जैसे माइंड में करते 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 जब आगे बढ़े भगवान को ऑफरिंग करने की, तो उन्होंने सोचा कि उन्हें एक बार चेक कर लिया जाए कि कहीं खीर ज्यादा गर्म तो नहीं है। तो उन्होंने जैसे ही खीर में हाथ लगाया, खीर में हाथ लगाया, तो उनका हाथ जल गया। तो एकदम से वो झटका खा के उठे, और उन्होंने देखा कि सच में उनका हाथ जल गया था। तो ये जो माइंड में वो ऑफर कर रहे थे, भगवान एक्चुअली उसको स्वीकार कर रहे थे, एंड भगवान वहां वैकुंठ में बैठ के हंसते हैं। तो अचानक लक्ष्मी जी पूछती क्या हो गया, आप अचानक हंस क्यों रहे? तो भगवान ने कहा कि ऐसे मेरा भक्त है जिसने माइंड में मुझे भोग लगाया, और अभी उसकी खीर ज्यादा गर्म हो गई, तो वो माइंड की खीर से जल गया। तो वास्तव में भगवान इन सभी रूपों में आकर, हम किसी भी फॉर्म में भगवान की पूजा कर सकते हैं। तो वी शुड नॉट वरी। कि कभी कभी लोग बोलते हैं, वास्तु शास्त्र वाले बोलते हैं कि भगवान की केवल मेटल की केवल फॉर्म होनी चाहिए, उसकी होनी चाहिए, बट हमारे शास्त्र कहते हैं सभी फॉर्म्स में आप भगवान की पूजा कर सकते हैं। एंड दूसरा है जो दर्शन लेने का पद्धति बताई गई। आप कभी मंदिर में जाते हैं तो कभी आपको भगवान के आंखों से सीधे दर्शन स्टार्ट नहीं करना चाहिए, हमेशा भगवान के फीट से दर्शन स्टार्ट करना चाहिए। फर्स्ट वी शुड लुक एट द फीट ऑफ द लॉर्ड।
और फिर वहां से ग्रेजुअली ऊपर उठते हुए जाना चाहिए। हमें ध्यान लगाते हुए, मेडिटेट करते हुए भगवान के पूरे शरीर के दर्शन करने हैं। सबसे पहले फीट, फिर भगवान के जो पिंडलियां हैं, पैर हैं, घुटने हैं, थाइज हैं, और उसके बाद भगवान की कमर है, कमर के ऊपर का रीजन चेस्ट है, फिर भगवान का नेक है, फिर भगवान का चेहरा है, और फिर भगवान की आंखें हैं सबसे लास्ट में। तो इस प्रकार से भगवान के दर्शन करते हुए जाना चाहिए। एक एक चीज माइन्यूटली ऑब्जर्व करना चाहिए कि भगवान ने किस कलर की ड्रेस पहनी है, ड्रेस में किस प्रकार के डिजाइन बने हुए हैं। कई बार लोग दर्शन कर लेते हैं, उनसे पूछो कि क्या दर्शन किया आपने, भगवान ने आज कौन से रंग के कपड़े पहने हैं, तो लोग दर्शन कर, अरे भगवान ने बहुत अच्छे कपड़े पहने हैं ये तो है, लेकिन अब क्या कलर है वो तो पता नहीं। तो वास्तव में आपने दर्शन नहीं किए, क्योंकि आपने मेडिटेट नहीं किया कि भगवान ने क्या पहना हुआ है, भगवान ने किस प्रकार के कुंडल पहने हुए हैं, उनका शेप क्या है, किस प्रकार की माला पहनी है भगवान में, वो कैसे शेप की है, उसमें कौन कौन से रत्न जड़े हुए हैं। दिस इज कॉल्ड मेडिटेशन, दिस इज कॉल्ड समाधि, व्हेन यू एक्चुअली फोकस ऑन द बॉडी, bodily limbs, ornaments and clothes of the Lord. That will give you, and it is said when you meditate on the eyebrows of the Lord, ऐसा कहा हमारे आचार्य कि जब भगवान के आईब्रोज पे meditate करते हैं तो उससे हमारे मन की जो लस्ट है वो समाप्त होती है, जो काम वो समाप्त होता है। तो अगर किसी को अपने काम की समस्या है, बहुत ज्यादा लस्टी है, इधर उधर देखता रहता है स्त्री को, और ये सब उसका जो है मन चंचल बहुत ज्यादा, तो ऐसे व्यक्ति को भगवान के आईब्रोज पे मेडिटेट करना चाहिए, जो तलवार की तरह बनी हुई आईब्रोज। तो भगवान के इस प्रकार से दर्शन हम सभी को करने चाहिए। तो इस भागवतम में ये सभी जानकारी दी हुई है। दैट्स व्हाई रीडिंग भागवतम इज सो इम्पोर्टेंट, कि हाउ वी हैव टू एक्चुअली टेक दर्शन ऑफ द लॉर्ड। डायरेक्टली फेस नहीं देखना है, वी आर नॉट क्वालिफाइड टू सी डायरेक्ट फेस ऑफ द लॉर्ड, इज हाउ वी हैव टू डू। ये सुमित प्रभु आप पढ़ना चाहिए नेक्स्ट। 0.8.23 यथा ऋषिकेश कालेन देवकी कंसेन क्रुद्धा तेजेश्वरम शुचाप्रिता विमो विमोचिताहं च सहा सहात्मजा विभो त्वयेव नाथेन मुहुर्विप्रदणात् Translation: O Rishikesh, master of the senses and the lord of lords, you have released your mother Devki, who was long imprisoned and distressed by the envious king Kamsa, and me and my children from a series of constant dangers. Purport: Devki, the mother of Krishna and sister of King Kamsa, was put into prison along with her husband Vasudeva because the envious king was afraid of being killed by Devki's eighth son Krishna. He killed all the sons of Devaki who were born before Krishna, but Krishna escaped the danger of child slaughter because he was transferred to the house of Nanda Maharaj, Lord Krishna's foster father. Kunti Devi, along with her children, was also saved from a series of dangers. But Kunti Devi was shown far more favor because Lord Krishna did not save the other children of Devaki, whereas he saved the children of Kunti Devi. This was done because Devaki's husband Vasudeva was living, whereas Kunti Devi's was a widow, and there was none to help her except Krishna. The conclusion is that Krishna endows more favor to devotee who is in great dangers. Sometimes he puts his pure devotee is in such dangers because in that condition of helplessness the devotees become more attached to the Lord. The more the attachment is there for the Lord, the more success is there for the devotee. सो इन दिस श्लोक विल सी कि किस प्रकार से कुंती महारानी भगवान को ग्लोरीफाई कर रही हैं। पहले उन आपने देखा भगवान के अलग अलग गुणों के वर्णन किए, फिर भगवान के शरीर की ब्यूटी का वर्णन किया, फिर एक्टिविटीज का वर्णन किया, है ना। शुरू में आप देख, जो हमने पहला श्लोक पढ़ा था उसमें जब 18 स्टार्ट किया था, तो लेट मी जस्ट शो यू, 18 जब स्टार्ट किया था तो उसमें उन्होंने भगवान के अलग अलग जो उनके गुण रहते हैं उनका वर्णन कर रहे थे। एक मिनट। तो चैप्टर, हाँ।
तो इनका जो उन्होंने पहले कहा था फॉर माई ओबेसेंसेस, पर उन्होंने ओबेसेंसेस की। आप ओरिजिनल पर्सनैलिटी हैं, अनअफेक्टेड बाई क्वालिटी हैं, आपको किसी तीन गुणों के अंदर नहीं है। आप बाहर भी हैं, अंदर भी हैं, और सबके लिए इनविजिबल हैं। और आपको अपने सेंसेस से नहीं देखा जा सकता। और आपके ऊपर माया का पर्दा पड़ा है। आप मूर्ख लोग आपको नहीं समझ सकते, उनके लिए आप हमेशा अदृश्य रहते हैं। जैसे एक कोई जो नाटक करता है वो अपने ड्रामा में होता है। एंड फिर उसके बाद अब वो उसके बाद बताते हैं कि अ, आप किस प्रकार से लोगों के हृदय में भक्ति डालते हैं। फिर उसके बाद चर्चा करते हैं कि आप वसुदेव देवकी के पुत्र हैं। और का तो इस प्रकार से एक एक करके वर्णन करें। फिर उनके रूप का वर्णन किया, पंकज नाभि पंकज। फिर भगवान की अब एक्टिविटीज का वर्णन किया है कि किस प्रकार से आपने देवकी के पुत्र के रूप में रहे, उनको छुड़वाया। एंड अब उन्होंने शिल प्रभुपाद जी करे कि उन्होंने कुंती के लिए ज्यादा मर्सी उन्होंने दिखाई, क्योंकि उन्होंने कुंती के पुत्रों की भी रक्षा की। और इस प्रकार से वी हैव टू अंडरस्टैंड हाउ वी हैव टू ग्लोरीफाई द लॉर्ड इन द समटाइम्स वी सेट एंड वी गो टू टेम्पल, वी थिंक कि क्या भगवान से प्रार्थना, हम सीधे जाते हैं भगवान से, कहते हैं भगवान हमारी ये चीज पूरी कर दो, हमारी वो चीज पूरी कर दो। आपको इतने का प्रसाद चढ़ाऊंगा, आपको उतने का, मेरे को पास करवा दो, इस बार केवल पास करवा दो भगवान, फिर मैं आपको 51 रुपए का प्रसाद चढ़ाऊंगा। मुझको करोड़ रुपए की लॉटरी लगवा दो, 500 रुपए आपको दूंगा। मतलब लोग सोचते हैं कि ज्यादा से ज्यादा भगवान मुझे दे दें और कम से कम मैं भगवान को दूं। और कुछ लोग तो केवल मांग के चले, तो एक्चुअली वो बिजनेस है। लेकिन आप देखिए यहाँ पर जो प्योर जो शुद्ध भक्त है वो भगवान को किस प्रकार ग्लोरीफाई कर रहे हैं। उन्होंने वो अपने लिए कुछ नहीं मांग रहे हैं। आप देखेंगे अपने को सबसे लास्ट में जाके मांगा जाता है, पहले केवल भगवान को ग्लोरीफाई किया जाता है। उनके नाम रूप गुण लीला इस सब को ग्लोरीफाई करते हैं, याद करते हैं। तो ये तरीका है भगवान से प्रार्थना करने का। एंड दिस इज हाउ कुंती देवी इज एग्जेम्प्लीफाइंग कि किस प्रकार हमें जाना है, भगवान से प्रार्थना करनी है। And भगवान इसीलिए अपने शुद्ध भक्तों को उदाहरण के रूप में हम सभी के सामने प्रस्तुत करते हैं, ताकि हम उनसे सीख सकें। और दूसरा है, भगवान उनको बहुत डेंजर में डालते हैं, जैसा शिल प्रभुपाद कह रहे हैं। क्यों डालते हैं? ताकि वो भगवान से और अटैच्ड हो जाए और प्रेम करने लगे। और जितना अटैचमेंट बढ़ता है भक्त का, उतना ही उसकी भक्ति में प्रगति होती है। तो दीज आर ब्यूटीफुल प्रेयर्स ऑफ कुंती महारानी, वी शुड रीड देम अगेन एंड अगेन। आप सभी लोग इस पर जाकर आप पढ़ सकते हैं। दीज आर ब्यूटीफुल प्रेयर्स एंड इस पर मेडिटेट करना चाहिए, हमें याद भी करने की कोशिश करनी चाहिए, विच विल बी वेरी गुड फॉर अवर स्पिरिचुअल लाइफ। हरे कृष्णा, हरे कृष्णा, हरे कृष्णा, कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम, राम राम हरे हरे। ग्रंथ राज श्रीमद् प्रभु जी भागवत। इसका यस प्रो। इसका प्रभु जी लिंक भेज दिया कीजिए ना, जो लिंक आप भेजते थे पहले, अभी लिंक शायद नहीं आ रहा हाँ हाँ, ठीक है, ठीक है। शिल प्रभुपाद की जय। है।